नो मैम। नो मैम। ओके रुक जाओ। ओके okay, so today we'll learn about inheritance. Okay, from the word inheritance you can understand what is the meaning, right? What is inheritance? Inheritance meaning, let's say if your parents have something, after parents you are going to get that. Okay, or from your parents you are going to get something. Okay, that is called inheritance, right? Now talking about single inheritance, let's say from your mom you are going to get something. Okay, or from your parents you are the only child who will get everything. Okay, that is called single inheritance, meaning you have two class, one is parent class, one is child class. Okay, we know how to create class, right? Yes or no? We know how to create class. Yes, ma'am. Hmm. और no. Single inheritance, which is parent class and child class. Now, first we'll learn that. Okay, before that, let me tell you all the definitions for different types of inheritance. So, see, from your parent class, when there is only one child class, that is called single inheritance. Now, if you are inheriting things from your parent one, from your parent two, meaning you are inheriting from two different parents. In that case, we call them multiple inheritance, meaning you are taking something from your one parent and from the other parent. Okay, that is called multiple inheritance. Now we'll see different examples of all these. Multi-level inheritance. What is that? You are inheriting something from your parent and then you are giving that to your brother or to your sister. Okay, so you are taking, let's say, one watch from your parent. Okay, and then you are giving that to your sister or to your sibling. Okay, that is called multi-level, going through some levels. Okay, that is called multi-level inheritance. Now hierarchical inheritance is what? We are, let's say, three siblings and we are inheriting, we all three inheriting from one parent. From our, let's say, mother, we all three taking something. Okay, or inheriting something. Okay, that is called hierarchical inheritance. Now how to create that? It's very easy. We know how to create class. Okay, see, what is the benefit of creating single inheritance? Class, this is class animal. Okay, now here we have one init method. Okay, which is, we have one property, that is name. Okay, self dot name. Now coming to child class. How to create child class? This is single inheritance, meaning you have only one parent and you are going to inherit something from your parent, right? So see, parent, child class. Okay, see, class animal. Okay, child class, cat, animal. Okay, see, this is how we inherit. You mention your class name and within parentheses you mention your parent name. This is called inheritance. Now what is the benefit? Benefit is, once you declare something here, you can use that later on. Meaning, in animal you have one property, so when you are calling this particular property, you have to mention your parent, like whatever your parent class has. See one thing, here you have init method. All of you remember init method? Yes or no? Yes, ma'am. No. So if we have init, what is the rule? That while creating the object, we have to mention the property thing. Like init के अंदर जो कुछ भी हम mention करते हैं, name, age, gender, if I mention all these three properties, तो जब हम object create कर रहे हैं, we have to mention all those properties. Like मुझे कुछ नाम देना पड़ेगा, gender बताना पड़ेगा, age बताना पड़ेगा while creating the object, right? तो अगर देखो, मैं कुछ ऑब्जेक्ट कैट के अंदर क्रिएट कर रही हूँ, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ इनिट नहीं है, राइट? बट आपको इनिट
प्रॉपर्टीज देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कैट ने एनिमल को इनहेरिट किया है, एंड इनहेरिट के अंदर इनिट मेथड है। तो इट्स लाइक लेट्स से मेरा एक पेरेंट के पास इनिट मेथड है, ठीक है। नाउ आई एम द चाइल्ड क्लास, ओके। नाउ अगर किसी को कुछ चाहिए मेरे से, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है देने में, ठीक है, बट मेरा पेरेंट को है, तो इसलिए मुझे पेरेंट ने बोल दिया था कि पहले पूछ लेना कि वेदर दैट पर्सन स्टेइंग नियर टू आवर हाउस और नॉट, ठीक है। तो ये पापा का क्राइटेरिया, मेरा नहीं है। तो अगर आपको कुछ चाहिए मेरे से, मुझे पापा का क्राइटेरिया मानना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज आप मांग रहे हो वो मेरा पापा का है। दो यू आर टेकिंग दैट थिंग फ्रॉम मी, ठीक है, स्टिल आई हैव टू मेंटेन दैट क्राइटेरिया, क्योंकि मैंने वो चीज पापा से इनहेरिट किए थे। आर यू गेटिंग मी? तो ये इनिट मेथड पेरेंट के पास है, चाइल्ड के पास नहीं है। व्हाट इफ ओके, सो ये कैट ने एनिमल को इनहेरिट किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए एनिमल के पास जो कुछ भी है, इनिट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम मुझे मेंशन करना पड़ेगा। सी हियर आई एम क्रिएटिंग वन ऑब्जेक्ट अंडर एनिमल कैट। सी हियर आई एम क्रिएटिंग वन ऑब्जेक्ट अंडर कैट। तो कैट के लिए तो मुझे कुछ देना नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि यहाँ पे तो इनिट का कुछ नहीं है, राइट? बट आई हैव टू मेंशन द नेम, व्हाई? बिकॉज आई हैव इनहेरिटेड एनिमल, एंड एनिमल के अंदर इनिट है। इज इट क्लियर और आई नीड टू एक्सप्लेन अगेन? अगर ये आप समझ गए तो बाकी इनहेरिटेंस सेम होंगी। यहाँ पे सिर्फ एक से मैंने एक इनहेरिट किया है, एंड रेस्ट थिंग्स आर एक के साथ बाकी है। आई विल शो यू। एनी कंफ्यूजन एनीवन? No, ma'am. एनी क्वेश्चन? गाइस एनी क्वेश्चन? प्रतीक, जय, गजानन, No, ma'am. गौरी, नीलंजन? किसी को कुछ भी पूछना है? मैं हिंदी में एक बार रिपीट करूं? क्यों वांटेड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please. हिंदी में चाहिए? Yes, ma'am. अच्छा। जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वो समझ में आया? इफ यू वांट समथिंग, सॉरी, अगर आपको कुछ चाहिए, वो मान लो मैंने मेरा कोई एक पेरेंट से इनहेरिट किया था, पेरेंट वन से मैंने इनहेरिट किया था, अभी वो चीज आपको चाहिए, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो वो चीज आपको अगर चाहिए, तो मेरा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, मैं आपको ऐसे ही दे दूंगी। बट मेरे जिससे जो पेरेंट्स से मैंने ये लिया था, उन्होंने बोला था कि पूछ लेना कि वो तुम्हारे घर के पास रहता है या नहीं, ओके। तो ये मेरे पापा का क्राइटेरिया है, तो वो मैं एक बार आपसे पूछ लूंगी कि आपका घर मेरे पास है या नहीं। अगर आपने ये क्राइटेरिया मेंटेन नहीं किया तो मैं आपको नहीं दे सकती, ठीक है। तो मेरा क्राइटेरिया वो नहीं है, बट जस्ट बिकॉज वो मैंने पापा से इनहेरिट किया था, तो वो मुझे आपको पूछना पड़ेगा। सेम यहाँ पे देख लो, मेरा पास टू क्लास है, एक क्लास है एनिमल, एक क्लास है कैट। अभी ये कैट क्रिएट करने के टाइम मैंने एनिमल को इनहेरिट किया है, एनिमल क्लास को, ठीक है। तो अभी एनिमल के अंदर जो कुछ भी था वो मेरे पास भी आ गया, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? Yes, ma'am. तो अभी इनिट का क्या रूल है? इनिट का रूल ये है, अगर आपके क्लास के अंदर कुछ भी इनिट है, इनिट में अगर मान लो नेम है, या तो फिर एज है, या तो फिर दोनों है, या तो फिर तीन चार चीज ऐसे प्रॉपर्टीज है, तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, वो आपको पेरेंथेसिस के अंदर सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे सिर्फ नेम है, अगर मैंने एज भी डाल दिया, जेंडर भी डाल दिया, तो तीन चीज हो गया, तीन प्रॉपर्टीज हो गया। तो अब जब क्रिएट कर रहे हो ऑब्जेक्ट, तब आपको ऐसे कॉमा देके तीनों चीज मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ नेम है, तो इसलिए हमने सिर्फ नेम ही मेंशन किया है। अगर और भी चीज होता तो आपको और भी चीज मेंशन करना पड़ता, एज, डेट, जो कुछ भी, वॉट एवर इज आस्किंग फॉर, आपको सब देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ नेम है, तो मुझे इसलिए मैंने नेम दिया है, ओके। अभी मैंने क्या बोला कि जस्ट बिकॉज मैंने एनिमल को इनहेरिट किया है, तो अभी एनिमल के पास जो कुछ भी है वो मेरे पास भी आ गया है। तो इनिट ये वाला चीज ये मेरे पास भी आ गया, कैट के पास भी आ गया, ठीक। अभी देखो नीचे देखो, ठीक। अभी ये हो गया तुम्हारा बेस क्लास, ये हो गया तुम्हारा चाइल्ड क्लास। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट मैं एक एनिमल स्मॉल ए, ये एनिमल अलग है, अच्छे से देख लो। ये आप सेम नहीं नेम दे सकते। यहाँ पे मैंने एनिमल में कैपिटल ए दिया है, यहाँ पे मैंने एनिमल में स्मॉल ए दिया है। आप चाहो तो नाम चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेम नाम रखा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो बट दे आर नॉट सेम, इसका स्पेलिंग अलग है। एंड पाइथन इज केस सेंसिटिव, तो पाइथन के लिए ये एनिमल और ये एनिमल अलग दो चीज है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट।
Okay. Now here first I'm creating one object that is animal. किसके अंदर? मेरा पेरेंट के अंदर. ठीक है. अभी पेरेंट के लिए तो पेरेंट का जो बेसिक क्राइटेरिया है, मतलब अगर आप पापा के पास से कुछ आपको चाहिए तो आपको डेफिनेटली बोलना पड़ेगा कि आपके घर उनके घर के पास है या नहीं. ठीक है. तो ये दैट इज वो क्राइटेरिया क्या है, आपको नेम, योर द क्राइटेरिया इज यू हैव टू मेंशन द नेम, बिकॉज यहाँ पे इनिट के अंदर मेरा नेम क्राइटेरिया है, नेम प्रॉपर्टी आपको मेंशन करना ही पड़ेगा अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है पेरेंट के अंदर. ठीक है. ये तो करना ही पड़ेगा, यू कांट डू एनीथिंग. ठीक है. तो ये एनिमल मैं क्रिएट कर रही हूँ, ये एनिमल के अंदर विद कैपिटल ए. दिस इज माई क्लास नेम, पेरेंट क्लास नेम, and I'm mentioning my name, so it's fine, right? Going to the next one, that is cat. So this is another one object. ये मैं किसके अंदर क्रिएट कर रही हूँ? ये मैं चाइल्ड के अंदर क्रिएट कर रही हूँ. देखो, ओके. ये चाइल्ड क्लास के अंदर मैं क्रिएट कर रही हूँ ये ऑब्जेक्ट. सी, क्रिएटिंग द क्लास अंडर क्लास. Okay. Now you're creating the class under child class. Clear? Sorry, creating the object under child class. Okay. Now cat. This cat I'm creating under the child class. अभी just because ये तो मैंने इनहेरिट कर लिया पापा से, तो अभी मुझे भी आपको पूछना पड़ेगा कि आपके घर मेरे घर के पास है या नहीं. दैट इज योर ऑल्सो व्हेन आई एम क्रिएटिंग वन ऑब्जेक्ट अंडर चाइल्ड क्लास, तब भी मुझे नाम बताना पड़ेगा. कैट का नाम मुझे बताना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बोल दिया था ये करने के लिए. इज इट क्लियर? तो व्हेन यू आर इनहेरिटिंग एनी क्लास, वो क्लास के अंदर जो कुछ भी है वो आपके पास आ जाएगा. आप सोचो कि ये इनिट की जगह आपके पास अगर कुछ फंक्शंस होता कि डिस्प्ले नेम या कोई भी फंक्शन, ओके, जो हमने ऐसे डॉग डॉग क्लास के टाइम हमने क्रिएट किया था ना कि टॉक, ये एक फंक्शन है, प्रिंट एट्रीब्यूट ये और एक फंक्शन है. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेरेंट के पास ये सारे फंक्शंस हैं. तो अगर आप पेरेंट को एक बार इनहेरिट कर लो क्लास क्रिएट करने के टाइम, अगर आप लिख दो डॉग, ठीक है, तब आप भी ये टॉक एंड प्रिंट एट्रीब्यूट ये सब आप एक्सेस कर सकते हो. मैं दिखाती हूँ. ये मैंने ले लिया. यहाँ पे एक, ठीक, ये मेरा एक है, ठीक है, क्लास. अभी इस क्लास के अंदर मैं एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करूंगी. चाइल्ड क्लास. ओके. ये चाइल्ड क्लास में क्रिएट करूंगी क्लास. लेट्स क्रिएट, लेट्स से पपी. ओके. वन पपी. डॉग के अंदर, डॉग इज माय चाइल्ड पेरेंट क्लास, एंड उसके अंदर मेरा एक चाइल्ड क्लास है जिसका नाम है पपी. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू इनहेरिट डॉग. ठीक है. क्लियर? अभी देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, राइट? आई हैव नथिंग बट yes, what named. Okay. Now let's create one object under this child class. Okay. So let's say um, one that I'm creating under चाइल्ड क्लास. चाइल्ड क्लास के अंदर मैं क्रिएट कर रही हूँ. अभी देखो एक चीज, ये जो क्लास है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, राइट? सिर्फ एक फंक्शन है जो है वॉक. तो अगर मैं लाइक वट एवर वी लर्न टिल नाउ उसके हिसाब से अगर चले तो ये जो डॉग के पास जो कुछ भी है, ये इनिट, ये फंक्शन सब मैं यूज कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने तो डॉग को इनहेरिट कर लिया है, राइट? तो अभी यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की है. तो व्हाट इज द रूल? मेरे पास कुछ इनिट नहीं है बट मेरे पापा के पास था, राइट? तो ये जो नेम एंड एज जो मैंने पापा से ली है वो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, राइट? तो मुझे ये पप्पी के नाम देना पड़ेगा एंड मुझे एज भी बताना पड़ेगा. हुआ? नाउ देखो, अभी मैं, मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है पप्पी वन. अभी मैं ये भी एक्सेस कर सकती हूँ, ये भी एक्सेस कर सकती हूँ, और ये तो मेरा खुद के पास है तो मैं डेफिनेटली ले ही सकती हूँ, राइट? क्लियर?
ये है बेसिक कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का। आप कोई भी क्लास को इनहेरिट कर लो, फिर उसके सारे फंक्शंस आप यूज कर लो। क्लियर? Yes, ma'am. अभी नेक्स्ट जो इनहेरिटेंस है वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। मैं अगर आपको दिखा दूं तो आप कर सकते हैं। ये एक बार देखिए, ये उप्स अगर हो गया ना, आज हम बहुत अच्छा एक चीज सीखेंगे जो आप मॉडल क्रिएट करने के टाइम लिटरली यूज करोगे। ठीक है, ये तो सारे हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो अभी मैं आपको पांडास दिखाऊंगी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट दे दूंगी, अभी आप ये ट्राई करो। ये बना के फिर यू शेयर दी कोड। डन। हर बैंक वो क्या
हो गया क्या गौरी? नो मैम। ये एक बार आप देख लो, मैं एक बस ये स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ 2 मिनट के लिए। हो गया ना? नाउ सी, ये तो मैंने बोल दिया था। नाउ कमिंग टू सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट वन, मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसका क्या रूल है? वी हैव टू पेरेंट्स। टिल नाउ वी लर्नड अबाउट वन पेरेंट वन चाइल्ड। नाउ यू हैव टू पेरेंट्स। पेरेंट क्लास वन विच इज फोर व्हीलर, उसके अंदर जो कुछ भी है फाइन। नेक्स्ट, और एक पेरेंट है इलेक्ट्रिक। Now see, here I have created one class which is battery information, battery info. Now इसके अंदर instead of one, I'm inheriting two classes. One is four wheeler, one is electric. So what is the benefit now? Now फोर व्हीलर के अंदर है ये वाला फंक्शन, तो ये मैं एक्सेस कर सकती हूँ क्योंकि मैंने फोर व्हीलर को इनहेरिट कर लिया। अभी इलेक्ट्रिक के अंदर है डिस्प्ले नेम, अभी ये भी मैं एक्सेस कर सकती हूँ, राइट। और मेरे खुद के पास है ये बैटरी डिटेल्स, ये तो मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का है। ओके, तो मैं मेरे पास अभी तीन फंक्शंस है, व्हीकल व्हील्स, डिस्प्ले नेम एंड बैटरी डिटेल्स। तो अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ये वाला चाइल्ड क्लास के अंदर तो मैं सबको एक्सेस कर पाऊंगी। ओके, आई कैन मैम मैम एक्सेस ऑल। मैम वन मोर टाइम मैम। देखो ये एक क्लास है सेपरेट क्लास, ये एक और क्लास है, ठीक है। तो मैंने दो डिफरेंट क्लासेस है। तो एक सेकेंड तो ड्रॉ करके दिखाओ। तो ये एक क्लास है सेपरेट क्लास फोर व्हीलर, ये एक क्लास है सेपरेट क्लास इलेक्ट्रिक। तो ये मेरा एक है पेरेंट वन, ये है एक पेरेंट टू। ओके, दो पेरेंट है ये, तो इंडिविजुअल क्लास है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने और एक क्लास क्रिएट की है जिसका नाम है बैटरी इन्फो। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने वो जो सिंगल इनहेरिटेंस था वहां पे मैंने सिर्फ एक को इनहेरिट किया था, यहाँ पे मैंने ये पेरेंट वन को भी कर लिया, पेरेंट टू को भी कर लिया। अभी मैं ये भी यूज कर सकती हूँ, ये भी यूज कर सकती हूँ, और मेरा खुद का जो है वो भी तो यूज कर ही सकती हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट नेम? कार वन। ओके, ये कार वन में किसके अंदर क्रिएट कर रही हूँ? ये बैटरी इन्फो के अंदर, ठीक है, मतलब इसके अंदर। तो अभी इसके पास क्या क्या है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, राइट। तो कार वन, व्हीकल व्हील्स, ठीक है। नेक्स्ट डिस्प्ले नेम, बैटरी डिटेल्स, सब व्हीकल नेम, सी व्हीकल व्हील्स ये मैंने कॉल कर लिया।
इसको भी मैंने कॉल किया है डिस्प्ले नेम, और इसको भी मैंने कॉल किया है, और देखो मैं सबको एक्सेस कर पा रही हूँ। अगर ये नहीं कर पाती तो यहाँ पे तो ये नहीं चलता, राइट? क्लियर है अभी? Yes, ma'am. नाउ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसका क्या फंडा है? इसका रूल है, एक आपने क्लास क्रिएट कर लिया, ठीक है? अभी आपके पास दो चिल्ड्रन है, एक इलेक्ट्रिक, एक बैटरी इन्फो, ठीक है? दिस इज मल्टी लेवल। तो आपने पेरेंट से कुछ लिया एंड वो आपने चाइल्ड को भी, एक चाइल्ड को दिया, मतलब मान लो पेरेंट ने मुझको दे दिया, ओके? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो ये है एक पेरेंट क्लास, ठीक है, जिससे मैंने इनहेरिट किया है कुछ, ठीक है? दैट इज फोर व्हीलर, ठीक है? तो आपने पापा से कुछ ले लिया, ठीक है? तो क्या ले लिया? ये व्हीकल व्हील्स ले लिया, ठीक है? अभी आपका जो सिबलिंग है, उन्होंने वो आपसे मांग दिया, ठीक है? तो ये देखो, मैंने फोर व्हीलर को इनहेरिट किया है, ठीक है? और मेरा जो सिबलिंग है बैटरी इन्फो, वो और एक डिफरेंट क्लास है, उन्होंने इलेक्ट्रिक को इनहेरिट किया है, मतलब मुझको इनहेरिट किया है। तो मेरे पास जो कुछ भी है अभी उसके पास भी सेम चीज है। तो फोर व्हीलर इज अ इंडिविजुअल क्लास जिसको इलेक्ट्रिक ने इनहेरिट की है, एंड ये बैटरी इन्फो ने इलेक्ट्रिक को इनहेरिट कर लिया है। तो अभी बैटरी इन्फो ये भी एक्सेस कर पाएगा क्योंकि ये तो इसका खुद का है, ये मेरे पास जो है वो भी एक्सेस कर पाएगा, ठीक है? और ये भी एक्सेस कर पाएगा बिकॉज पापा ने मुझको दिया था, तो मेरे सारी चीज इसका हो गया है। अभी अभी मेरे पास जो है वो भी इसका है, पापा ने ये मुझको दिया था, ये भी उसका है। गॉट इट? इट्स ऑल अबाउट हाउ यू राइट। उसके ऊपर कभी ये मल्टी लेवल हो जाएगा, कभी ये सिंगल इनहेरिटेंस हो जाएगा, और कभी ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा। अब ठीक से नाम देखो, ये एक इंडिविजुअल क्लास है, इसको इलेक्ट्रिक ने इनहेरिट किया है, ठीक है? फोर व्हीलर, इसको इलेक्ट्रिक ने इनहेरिट किया है। तो अभी इलेक्ट्रिक क्या क्या एक्सेस कर पाएगा? ये खुद के पास जो है वो एक्सेस कर पाएगा, और ये फोर व्हीलर के पास जो था वो भी एक्सेस कर पाएगा, वो फंक्शन भी एक्सेस कर पाएगा। कमिंग टू चाइल्ड क्लास 2, ये ये बैटरी इन्फो ने इलेक्ट्रिक को इनहेरिट किया है, तो ये खुद के पास जो है वो भी एक्सेस कर पाएगा, इलेक्ट्रिक के पास जो है वो भी एक्सेस कर पाएगा, एंड इलेक्ट्रिक ने तो इसको इनहेरिट किया था तो ये भी एक्सेस कर पाएगा। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हायरार्किकल इनहेरिटेंस, इसमें क्या है? ये एक सिंगल क्लास है, इंडिविजुअल क्लास है जिसका नाम है फोर व्हीलर, ओके? अभी ये इलेक्ट्रिक ने फोर व्हीलर को इनहेरिट की है, राइट? ये हुआ चाइल्ड क्लास 1, ठीक है? मेरे पास और एक चाइल्ड है, तो एक ही पेरेंट का दो, ठीक है, दो चाइल्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक ने भी फोर व्हीलर को इनहेरिट किया है, एंड बैटरी इन्फो ने भी फोर व्हीलर को ही इनहेरिट किया है। तो अभी ये इलेक्ट्रिक ये भी एक्सेस कर पाएगा क्योंकि ये इसका खुद का है, फोर व्हीलर को इनहेरिट किया है तो ये भी एक्सेस कर पाएगा। और कमिंग टू चाइल्ड क्लास 2, ये खुद को, ये खुद के पास जो है वो एक्सेस कर पाएगा, और इसको इनहेरिट किया है तो इसके पास जो है वो भी एक्सेस कर पाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. कोई भी कंफ्यूज हो तो मुझे बोल सकते हो, डोंट कीप इट विथ यू। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। मल्टी लेवल और इसमें डिफरेंस क्या है मैम? आप बताओ, अच्छे से देखो, ये छोटा करके दे रही हूँ, इसको देखो और इसको देखो, क्या डिफरेंस है? ये पेरेंट क्लास का एक पेरेंट क्लास को हाउ मेनी पीपल इनहेरिटेड? ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, राइट? राइट। तो ये एक इंडिविजुअल क्लास है क्योंकि इन्होंने किसको किसी को भी इनहेरिट नहीं किया है, तो ये जी। एक इंडिविजुअल क्लास है, राइट? हम्म। ये फोर व्हीलर को इलेक्ट्रिक ने भी इनहेरिट किया है, राइट? तो मान लो आप, ये आपका पापा है, ये आप हो, तो पापा के पास जो है वो आप ले सकते हो, राइट? जी राइट। ये है आपका बहन, ये भी पापा के पास जो है वो ले सकते हैं क्योंकि फोर व्हीलर को इन्होंने भी इनहेरिट किया है, देखो। तो फोर व्हीलर के पास जो कुछ भी है
वो ये भी एक्सेस कर पाएगा और ये भी एक्सेस कर पाएगा। बट आपका जो भी ड्रेसेस है या आपके पास जो कुछ भी है वो तो आपका बहन का नहीं है, राइट? राइट। आपके पास जो है वो आपका है और बहन के पास जो है वो बहन का है। तो ये मान लो आप, ये आपका हम्म, बहन है, दोनों ओके के पास पापा की चीजों का एक्सेस है, बट एक दूसरे का चीज का कोई एक्सेस नहीं है। यू विल नॉट गिव एनीथिंग टू योर सिस्टर, और सिस्टर के पास जो भी है वो भी आप एक्सेस नहीं कर सकते, राइट? राइट। तो ये है आप, ये आपका बहन और ये है पापा। ओके, ये है ओके। हायरार्किकल, मतलब पापा से हम दोनों ले सकते हैं। ठीक हाँ। है, अभी ये गया मैं मल्टी लेवल में। मल्टी लेवल में क्या है? ये है पापा, ये है ये हो आप, और ये है आपका बहन। ओके, ओके। ये पेरेंट क्लास के पास जो कुछ भी है, ये इलेक्ट्रिक, मतलब आप सब एक्सेस कर सकते हो। हाउ? क्योंकि आपने पापा को इनहेरिट किया है। आप जिसको इनहेरिट करोगे एज अ क्लास, वो आपका पापा है, दैट इज योर पेरेंट। ओके। ये इलेक्ट्रिक ने फोर व्हीलर को इनहेरिट किया है खुद के अंदर, तो ये फोर व्हीलर हो गया इसका पेरेंट। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रिक ये फोर व्हीलर के पास जो कुछ भी है ये एक्सेस कर सकता है। ओके। ओके, तो अभी इलेक्ट्रिक के पास क्या क्या है? इलेक्ट्रिक के पास डिस्प्ले नेम है जो इसका खुद का है, और इसके पास ये व्हीकल व्हील्स भी है जो ये इसको फोर व्हीलर से मिला है क्योंकि इन्होंने फोर व्हीलर को इनहेरिट किया है, राइट? राइट। अभी गोइंग टू बैटरी इन्फो, जो आपका बहन है, ठीक है, या। इसने किसको इनहेरिट किया है? आपको। अभी ओके। उसका खुद का चीज भी उसका है, आपके पास कितना कुछ है, आपके पास डिस्प्ले नेम है, आपके पास व्हीकल व्हील्स है, तो ये दोनों भी इसका हो गया। ओके, दैट मीन फर्स्ट पर्सन के पास। आप ये देखो, ये देख के पता लगा, मल्टी लेवल मतलब पापा से आपको मिला था, अभी बहन ने आपको इनहेरिट करके आपके सारी चीज ओन कर लिया। या आई गॉट इट। तो इसके मतलब ये प्रिंसिपल नहीं के है। पास जो है और सेकंड पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन के पास है, वो सेकंड पर्सन एक्सेस कर सकता है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक को एक्सेस किया है, मतलब सॉरी, इनको इसने इलेक्ट्रिक को पेरेंट बनाया है, तो अभी हाँ। ये ये भी इसका है, इसके पास जो कुछ भी ये भी इसका है, या आई थ्रू गॉट यू, थ्रू यू। ये हुआ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मतलब पापा से आपको मिला था और आपसे बहन को मिल गया। इट। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, ये हो गया। नाउ मूविंग टू पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब हियर इन पॉलीमॉर्फिज्म वी हैव टू कॉन्सेप्ट, वन इज ओवरराइडिंग एंड वन इज ओवरलोडिंग। ठीक है, नाउ वी लर्न अबाउट ओवरराइडिंग। ये भी बहुत इजी एक चीज है। व्हाट इज दिस ओवरराइडिंग? ओवरराइडिंग मतलब सी, हियर आई हैव वन क्लास कॉल्ड व्हीकल। ठीक है, नाउ अंडर व्हीकल वी हैव इनिट मेथड। इनिट में क्या क्या प्रॉपर्टीज है? आप अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो इस व्हीकल के अंदर, तो यू हैव टू मेंशन नेम, कलर एंड प्राइस। सिंपल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट फंक्शन अंडर व्हीकल क्लास। फंक्शन क्या है? शो। तो अगर आपने ये शो फंक्शन को कॉल किया, तो आप ये डिटेल्स आपको मिल जाएगा। यू विल गेट नेम एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने मैक्स स्पीड वाला फंक्शन को कॉल किया, तो आपको ये मिलेगा, इट विल प्रिंट। अगर आपने ये मैक्स स्पीड कॉल किया, तो आपको मिलेगा व्हीकल मैक्स स्पीड इज 150, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्लास कार। ठीक है, ये एक नया क्लास है जिन्होंने व्हीकल को इनहेरिट किया है। अभी इनहेरिटेंस का मतलब तो हमें पता ही है, क्या मतलब है? कि मैं मेरे खुद के पास जो है वो एक्सेस कर सकती हूँ, जो है मैक्स स्पीड, एंड मेरे पेरेंट के पास जो कुछ भी है वो भी मैं एक्सेस कर सकती हूँ। तो ये कार क्लास अभी मैक्स स्पीड को भी एक्सेस कर पाएगा, ये इनिट भी, ये शो, ये मैक्स स्पीड, सब कुछ एक्सेस कर पाएगा। तो कैन यू सी वन थिंग कि ये दो फंक्शन का नाम सेम है? दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग मीनिंग आपके पास जो कुछ भी है, मान लो पापा से आपको एक हाउस मिला है और एक साइकिल मिला है। ठीक है, तो अभी मिलने के बाद ये हाउस आपने रख लिया, आपने व्हीकल को इनहेरिट किया है क्योंकि आपको ये सब चीज का एक्सेस चाहिए। ठीक है, अभी देखो ये तो ठीक है, ये चल जाएगा, ये भी मेरे लिए ठीक ही है, हाउस इज फाइन, मुझे हाउस पसंद है। कमिंग टू साइकिल, तो साइकिल का डिजाइन या कलर मुझे थोड़ा पसंद नहीं है, तो मैंने क्या किया, सिर्फ ये साइकिल को थोड़ा चेंज कर लिया। तो इसलिए मैंने सेम नेम देके उसका आउटपुट बदल दिया। तो मुझे पापा से सब कुछ चाहिए, सिर्फ ये चीज मुझे थोड़ा पसंद नहीं है, तो मुझे ये चेंज करना है। तो व्हाट आई हैव डन, आई केप द नेम सेम, नेम साइकिल ही है, सिर्फ मैंने आउटपुट चेंज कर लिया है। आई वांट डिफरेंट आउटपुट। ये कार का सब कुछ मेरा सेम ही है, बट यहाँ पे मैक्स स्पीड मेरा 150 था, बट आई हैव इंक्रीज दैट टू 240। तो अभी अगर आपने कार के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड इफ यू कॉल मैक्स स्पीड, वो आपको व्हीकल मैक्स स्पीड 150 के जगह आपको कार मैक्स स्पीड 250 बताएगा, क्योंकि मैंने उसका आउटपुट चेंज कर लिया है। दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। आप इसके जगह मैक्स स्पीड के जगह आप शो को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, पापा से आपको जो शो मिला था वहां पे नाम और कलर दिखाते थे,
अभी अगर आप चाहो तो आप कलर हटा के सिर्फ नेम को रख सकते हो. यू कैन राइट इट लाइक डेफ शो सेल्फ प्रिंट डिटेल्स सेल्फ नेम ओनली. तो अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करो इस कार के अंदर, इस कार क्लास के अंदर, एंड इफ यू कॉल शो, वो आपको नेम एंड कलर की जगह सिर्फ नेम दिखाएगा. क्यों? क्योंकि वो तो आपने चेंज कर लिया है. एनीवन कंफ्यूज्ड? देखो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. द नेम इज कार 1. किसके अंदर, कौन सी क्लास के अंदर मैंने क्रिएट किया है? ये कार के अंदर. अभी कार ने तो व्हीकल को इनहेरिट किया है. तो एज पर रूल आई कैन एक्सेस इनिट, आई कैन एक्सेस शो, आई कैन एक्सेस मैक्स स्पीड. बट यहाँ पे मैंने मैक्स स्पीड वाला जो फंक्शन है उसको थोड़ा चेंज कर लिया है. नाउ सी, इफ आई एम कॉलिंग मैक्स स्पीड, व्हाट आउटपुट आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग कार मैक्स स्पीड इज 240. व्हीकल मैक्स स्पीड 150 मुझे नहीं मिल रहा है. बट यू चेक शो, शो के लिए मुझे क्या मिल रहा है? डिटेल्स, नेम इज एक्स एंड कलर इज ब्लैक. देखो यहाँ पे शो में क्या क्या डिटेल शो करेगा? नेम एंड कलर. तो वो ही मुझे शो कर रहा है. नेम इज एक्स एंड कलर इज ब्लैक. बट मैम आपने कहीं ब्लैक मेंशन किया है ऊपर कोड में? यहाँ पे ये जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इनिट के अंदर आपको नेम कलर प्राइस ये सब डाल के फिर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाओगे. नहीं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होगा. मैं और एक करके आपको दिखाती हूँ. चलो कार 2, ये मेरा एक नया ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये मैं क्रिएट कर रही हूँ कार के अंदर. अभी आप मुझे बताओ कार कौन कौन फंक्शन, कौन सा फंक्शन एक्सेस कर सकता है? बताओ. गलती भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, मैं ठीक कर दूंगी. Access. मैक्स स्पीड एंड कार ने तो व्हीकल को इनहेरिट किया है, राइट? तो क्यों इनहेरिट किया है? ऐसे ही जस्ट लिखने के लिए नहीं, राइट? व्हीकल के अंदर जो कुछ भी है वो मुझे एक्सेस करना है, इसलिए मैंने व्हीकल को इनहेरिट किया है. व्हीकल ने किसी को इनहेरिट नहीं किया, ये एक सिंगल क्लास है. तो Name, ये सिर्फ color, खुद के पास and जो कुछ भी है access. वही एक्सेस कर सकता है. सॉरी, And name, color, and access. हाँ वो तो प्रॉपर्टीज है. और फंक्शंस वो तो इनिट के अंदर है. मतलब आप अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाओगे तो आपको ये सब मेंशन करना पड़ेगा. गाइस थोड़ा इंटरेक्ट करो. मैं इतना सारा एग्जांपल्स देके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, राइट? तो ट्राई टू मैम आप, रिप्लाई. हेलो हम्म. मैम, आप कार 2 का कर रहे थे वो हाँ वो बताओ. ये कार 2 अगर मैंने ये व्हीकल क्लास के अंदर क्रिएट किया तो व्हाट आर द फंक्शंस आई कैन एक्सेस? व्हीकल के पास क्या क्या फंक्शंस हैं? show max speed both. बोथ. गुड. तो अगर मैं यहाँ पे व्हीकल के अंदर क्रिएट करूँ ये वाला कार 2, राइट? तो मुझे यहाँ पे क्या क्या डालना पड़ेगा? Name and color or access. मैक्स स्पीड कहाँ पे है? मैक्स स्पीड प्रॉपर्टी है क्या? इनिट के अंदर मैक्स स्पीड है क्या? No. Name and color. नेम कलर एंड Price. यस. तो नेम इज लेट्स से XY, color is let's say red, and price is let's say 4000. ओके. तो ये कार 2 मैंने व्हीकल के अंदर क्रिएट किया है. तो अभी अगर मैं कार 2 से शो को एक्सेस करूं, मुझे क्या क्या आउटपुट आएगा? शो में है आप नाम दिखाओ एंड कलर दिखाओ. मैं दिखा दी. तो इन्होंने मुझे नाम दिखा दी, कलर भी दिखा दी, राइट? और किसको कॉल किया है मैंने? मैक्स स्पीड को. तो अभी व्हीकल के अंदर क्या है मैक्स स्पीड का आउटपुट? व्हीकल मैक्स स्पीड इज 150. चलो देखते हैं. यस, व्हीकल मैक्स स्पीड इज 150. अभी एक क्रिएट करते हैं कार के अंदर, दैट इज कार 3. ओके, ये मैं क्रिएट करती हूँ कार क्लास के अंदर. अभी कार ने तो व्हीकल को इनहेरिट किया है, तो इसलिए मुझे कार के लिए भी ये तीनों को मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज अभी कार का भी हो गया है. अभी कार 3 से मैं शो को एक्सेस करती हूँ एंड मैक्स स्पीड को भी एक्सेस करती हूँ. ठीक है, ये आउटपुट याद रखना. नेम, कलर एंड मैक्स स्पीड इज 150.
अभी मैंने car3 क्रिएट किया है वो कार क्लास के अंदर। अभी देखते हैं क्या आउटपुट होता है। ओके, नेम कलर, बट ये वाला आउटपुट चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि कार के अंदर मैंने इसका आउटपुट चेंज कर दिया है। अंडरस्टूड? yes, तो आपने साइकिल का कलर चेंज कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस है, ये आप ऐसा टास्क कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। आप यहाँ पे ऐसा क्वेश्चंस आता है इंटरव्यूज में, सिंपल है, आपको पढ़ के ऐसे आउटपुट बनाना है। ठीक है, आपको कोड बनाना है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज आपका टास्क है। ये वाला का आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है, बट इसका नहीं है, तो ये आपका टास्क है, और ये भी आपका टास्क है। So I have given the answer, still you try to understand what is happening. Okay. Now coming to exception handling. What is this exception handling? Exception handling meaning हमें बहुत सारा errors आता है, right? And every time you get error, I ask you to understand कि आपको क्यों error मिल रहा है, right? तो वो आप syntax error से पढ़ सकते हो। जो syntax error दिखाता है ना, उसमें it will explain कि why you are getting that error. It will explain you the reason behind that error, right? Now let's say we learnt about if statement. अभी मान लो आपने एक if statement लिख दिया, that is if a is less than 3. Okay? And यहाँ पे मैंने ये भी डाल दिया। Now let's play this. What it's showing? Incomplete input. So if a is less than 3, then what? अगर ये true हुआ तो फिर क्या? What after that? अगर ये true हुआ then what should I do? वो यहाँ पे mention नहीं है. That's why it's giving us incomplete input error. Okay, so this is called error. Exception error, meaning there we are getting some exception and that's why we are not able to play the code. That's why it's showing us error. Okay. Now coming to another one thing, that is called another one type of error, which is called zero division error. Meaning, let's say you have two things, A and B. Okay, and for both the things, both the variables, you are taking input from your user. Okay, and after taking the input, I have mentioned that C equal to A divided by B. Meaning in A, whatever you mention, will divide that by B. So now let's play this. Let's say in A, I want to give 50, and in B, I'm giving 0. What it's giving? Zero division error. Zero division error. We can't divide any number by 0. Okay, so this is called zero division error. So while you are getting error, you will get one explanation as well. Okay, now coming to try and accept error. Okay, now what is this try and accept? Try and accept says that try this. If you are getting any error, then do this. If this one work properly, then the interpreter will not come here. Okay, अगर ये काम नहीं किया, अगर इससे मुझे कुछ एरर आया, तब ये चीज काम करेगा। तो इसका फायदा क्या है? आपको एरर नहीं मिलेगा, ये कोड चल जाएगा। ये कहाँ पे हम यूज करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा व्हाइल यू विल लर्न अबाउट मॉडल क्रिएशन। मॉडल क्रिएट करने के टाइम ऐसे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बिकॉज लेट्स से देयर आर सो मेनी थिंग्स, ह्यूज डेटा सेट, एंड यू डोंट नो दैट फ्यू लाइंस विल वर्क और नॉट। तो तब अगर हम ट्राई एंड एक्सेप्ट के अंदर वो डाल दे, व्हाट विल हैपन? तो ट्राई के थ्रू अगर वो काम नहीं किया, तो वो एक्सेप्ट से वो नलीफाई होके मेरा नेक्स्ट कोड चल जाएगा। तो मेरा कोड चल तो जाएगा, मैंने अगर पूरा नोटबुक प्ले कर दिया तो मेरा कोड चल जाएगा। अगर इससे मुझे कुछ एरर आया तो वो एक्सेप्ट में जाके नल हो जाएगा, एंड वट एवर प्रिंट और वट एवर टास्क यू वांट टू गेट एज योर आउटपुट वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता है कि जो यूजर ये प्ले करेगा वो बी में 0 मेंशन करेगा या नहीं, आई डोंट नो। ओके, सो देयर आर पीपल, लेट्स से आई एम यूजर 1, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 50 डाल दिया एंड बी में 10 डाल दिया।
तो आई एम अ गुड यूजर, तो मैंने दे दिया, तो मुझे आंसर भी मिल गया, फाइन। यू आर यूजर 2, और लेट्स से वी हैव वन यूजर 2 जिन्होंने ए में 50 मेंशन किया एंड बी में 0 मेंशन कर दिया। नाउ इट विल नॉट वर्क। बट देखो मेरा कोड प्ले तो हो गया, राइट? प्ले हो गया, बट यहाँ पे ये दिखा भी दिया कि उप्स यू हैव एंटर्ड 0 एंड वी कांट डिवाइड एनी नंबर विद 0। तो ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड ट्राई एंड एक्सेप्ट। ट्राई के अंदर अगर एरर आया तो एक्सेप्ट एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर ये चल गया तो एक्सेप्ट का कुछ काम नहीं है। ये कुछ काम का नहीं है। देखो यहाँ पे और एक चीज है कॉल्ड रेजिंग एक्सेप्शन। Exceptions are raised when corresponding errors occur at runtime. यानी रन टाइम के टाइम अगर मुझे एरर आया तो ये एक्सेप्शन एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है? मान लो यहाँ पे मेरा मुझे दो इनपुट लेना है फ्रॉम द यूजर, वन इज ए वन इज बी। तो हियर आई हैव मेंशन ट्राई इफ बी इक्वल टू 0 और नॉट, ठीक है? तो ये इनपुट यूजर से लेने के बाद यहाँ पे आके मैं चेक करूंगी कि यूजर ने बी में 0 तो नहीं डाल दिया, क्योंकि 0 अगर डाल देगा तो ये तो काम नहीं करेगा। तो इसलिए आफ्टर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर हियर आई एम चेकिंग वेदर बी इक्वल टू 0 और नॉट, ठीक है? तो अगर ये 0 हुआ तो ये वाला कंडीशन तो ट्रू हो गया, राइट? फिर क्या होगा? इट विल कम टू द नेक्स्ट लाइन। अगर बी 0 है तो, ठीक है, इट विल रेज वन वैल्यू एरर एंड विल टेल मी यू गेव 0। ओके, अभी ये एक्टिवेट होने के बाद इट विल कम हियर, ओके, इट विल कम टू द एक्सेप्ट पार्ट एंड विल प्रिंट द स्टेटमेंट व्हिच आई हैव हियर इन वैल्यू एरर। मैं एक बार प्ले करके आपको देखो, मैंने ए में 50 डाला एंड बी में 10 डाला, ठीक है? तो इसमें कुछ एरर नहीं आया, तो इसने मुझे अच्छे से बता दिया कि ये तुम्हारा इनपुट है एंड अभी आप इसको लेकर कुछ भी कर सकते हो। आई एम प्लेइंग अगेन, आई एम यूजर 2, ठीक है? तो मैंने 50 डाला यहाँ पे एंड यहाँ पे 0 डाल दिया। ये 0 डाल दिया तो ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगा एंड फिर ये वैल्यू एरर भी रेज हो जाएगा। रेज होने के बाद इट विल कम टू दिस एक्सेप्ट पार्ट एंड विल प्रिंट द स्टेटमेंट आई हैव मेंशनड विद इन दिस पैरेंथेसिस। नाउ प्ले। ओके, गाइस आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये कल आप कंप्लीट करके आना, ठीक है? ये वाला आपको एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करना है अंडर वन पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास का नाम है फ्लैट, ठीक है? एंड फ्लैट के अंदर आपको इन्फो एंड जीम नाम का दो फंक्शंस क्रिएट करना है, टू मेथड्स और टू फंक्शंस, ठीक है? और आप कोई भी एक नाम का चाइल्ड क्लास क्रिएट करो, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट क्लास के अंदर जो कुछ भी है इन्फो जिम ये सबको एक्सेस करने का ट्राई करो। क्वेश्चन अगर क्लियर करना है तो कर लो।
हो गया? Okay. Now we'll learn three three things. Okay, one NumPy, two pandas, and three Seaborn. Okay, and Matplotlib. One NumPy we use for arrays. Okay, pandas we use for data frame. Data frame मतलब जहाँ पे rows and columns है. Okay, and three Seaborn and Matplotlib we use to visualize the data. Okay, pandas and आपका Matplotlib हम कल सीखेंगे and आज हमें NumPy सीखना है. So what we have discussed कि NumPy we use for arrays. अभी array क्या होता है? This is called array. जो आपको least की तरह लग रहा है, right? It looks like least. Now let's import one module which is NumPy. Okay, and this is called alias. Now instead of NumPy हम इसको NP बोल के बुलाएंगे. अभी NP की जगह आप कुछ भी बोल सकते हो. But why NP? Because this is a generalized. हम सब NP यूज करते हैं for NumPy. तो अगर आपको कुछ कोड ढूंढना है या किसी का सोल्यूशन चाहिए आपको NumPy NP के नाम पे ही आपको मिलेगा. ऐसा नहीं है कि आप दूसरा नाम नहीं दे सकते, आप दे ही सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो. एज बोल के आप कुछ भी लिख सकते हो NumPy की जगह. ओके, अगर आपको इन कुछ नाम नहीं भी देना है वो भी आप कर सकते हो, आपको NumPy ही लिखना है वो भी कर सकते हो. बट यहाँ पे बहुत सारा कोड्स होता है एंड वी ऑल यूज NP, तो ये जनरलाइज्ड हो गया है ये वाला एलियस. NumPy में NP, pandas के लिए PD. ठीक है, ये कॉमन हो गया है तो हम सब NP ही यूज करते हैं. ओके, नाउ लेट्स क्रिएट वन एरे. हाउ टू क्रिएट एरे? एरे इक्वल टू NP which stands for NumPy डॉट एरे, फिर पेरेंथेसिस एंड उसके अंदर आपको जो भी नंबर से आपको एरे क्रिएट करना है वो सारे नंबर्स आप लिख सकते हो. ठीक है, नाउ वी आर प्रिंटिंग आवर एरे एंड वी आर चेकिंग द शेप. ये शेप क्या होता है? शेप मतलब आपके पास कितने सारे एलिमेंट्स हैं. तो ये आपको दिखने में ऐसा लग रहा है बट व्हेन वी विजुअलाइज वन एरे वी विजुअलाइज लाइक दिस. तो अगर मैं ये आपको दूं और आपको शेप पूछूं कि इसका शेप क्या है, इसका शेप है कितना सारे रोज है यहाँ पे 5, तो कितना कॉलम है 1. so when we check shape we'll get 5 rows and कॉलम दिखने की जरूरत नहीं है because we have only one. अगर आपको ऐसा शेप मिले it means you have only 5 rows and this is called 1D मतलब one dimensional array. This is how we visualize one array. How to create array then? कुछ भी नाम दे दो array का, NP array and जो नंबर आप क्रिएट करना है उसको डाल दो पेरेंथेसिस के अंदर. ये अगर आपने विजुअलाइज किया तो इट लुक्स लाइक दिस. इसका शेप 3. दिस इज कॉल्ड 1D array. अंडरस्टूड?
तो अभी देखो हम विजुअलाइज तो 3D तक कर सकते हैं, राइट? 4D वी कांट विजुअलाइज। तो आई विल शो यू हाउ 1D, हाउ 2D एंड हाउ 3D लुक्स लाइक। उसके बियॉन्ड भी अरेज होता है व्हिच मशीन कैन क्रिएट, बट वी कांट विजुअलाइज दैट। वो मैं ऐसे आपको विजुअलाइज नहीं कर सकते, ओके? आई कांट शो यू दैट, बट देयर आर हायर लेवल्स एज वेल, हायर डायमेंशंस एज वेल। Coming to 2D array. 2D array, it looks like least of least. Okay? Okay? अब ये कैसे लिख रहे हैं हम? Let's say this is your 2D array. अच्छा, 2D array हम झट से कैसे पहचानेंगे कि ये वाला array कितने डायमेंशन का है? 2D array starts with 2 boxes and ends with 2 boxes. इसके मतलब ये 2 डायमेंशनल array है. ओके? अभी ये कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9. अभी इसको अगर मैं बॉक्स में डाल दूं तो कितने रोज एंड कितने कॉलम्स है बताओ? 3 3 3. तो इसका शेप हुआ 3 रोज एंड 3 कॉलम। अगर मैंने यहाँ पे और एक ऐड कर, ये हो जाएगा 1 2 3 11 4 5 6 20 एंड 7 8 9 30। ये हो गया 2 डायमेंशन। इसका शेप क्या होगा बताओ? 3 4 क्योंकि मेरे पास 3 रोज है 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स है 1 2 3 11, ये वाला। तो इसका 4 कॉलम है एंड 3 रोज है, तो इट इज 3 4। तो पहले रो फिर कॉलम। अभी देखते हैं 3 डायमेंशन। दिस इज हाउ 3 डायमेंशनल एरे लुक्स लाइक। तो ये हम कैसे विजुअलाइज करें? इतना तक मैं करवा सकती हूँ, इसके बाद वी कांट विजुअलाइज बिकॉज 4 डायमेंशन कैसे करें, राइट? 3 डायमेंशन वी कैन। तो कितने सारे 2 डायमेंशन है इसके अंदर बताओ दे। लेट्स सी हु कैन टेल मी। इसके अंदर कितना सारा 2 डायमेंशनल एरेज है? ये तो 3 डायमेंशन है क्योंकि इट स्टार्ट्स विद 3 बॉक्सेस एंड एंड्स विद 3 बॉक्सेस, तो ये एक 3D एरे है। अभी बताओ इसके अंदर कितना सारे 2 डायमेंशनल एरेज है? मैम तो 2 2 है। 2 है, राइट? तो ये हुआ एक एंड ये हुआ और एक, तो मेरे पास 2 लेयर्स है। तो एक लेयर हुआ ये एंड दूसरे लेयर हुआ ये। ओके? अभी बताओ हर एक 2 डायमेंशनल एरे में कितना सारा 1 डायमेंशनल एरे है? 6 2 2D एरेज वी हैव। अभी बताओ कितना सारे 1D एरे है? 6 इन ईच 2D एरे में कितने सारे 1D एरे है? 3 3। गुड। तो अभी ये हम जैसे लिखते हैं, लास्ट टाइम हमने जैसे लिखे थे वैसे ही लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम फॉर दिस। Okay, so we have two 2D array and in each 2D array we have three 1D array. Okay, now see if I check the shape, it's giving me 2 comma 3 comma 3. Why? Because we have two 2D array, three 1D array, and in each 3D array we have 3 columns. So 2 3 and then 3. Clear? Easy peasy. Yes, yes. yes sir Okay, अभी array बनाने के बाद you can check the type of data you have in that array. हमने यहाँ पे string के साथ भी arrays create किया है, but in real time you will see whenever we are creating array, we are creating that with number. Okay, हम number के साथ ही most of the time create करेंगे array. ये हमने play नहीं किया। Now what is this size? कोई बता सकते हैं what is this size? Size क्या है?
शेप तो पता चल गया, राइट? तो ये साइज क्या है? मैम कितने लेटर्स हमने यूज किया थे, नंबर जैसे 1 2 3। ये टोटल में कितने सारे एलिमेंट्स है, टोटल में कितना नंबर्स है? तो शेप मेरा था 3D अरे का 2,3,3। तो अभी ये तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 6 3 18। दिस इज योर साइज। ओके, तो जैसे आपने एरे बनाया वैसे आप शेप बता के जीरो के साथ भी वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। इफ आई आस्क यू कि मुझे एक एरे चाहिए ये वाला शेप में एंड क्रिएट दैट विथ ऑल जीरो, तो आप कैसे क्रिएट करोगे? आप एक नाम दे दोगे एरे का एंड यू विल मेंशन np डॉट जीरोस, मतलब एक एरे क्रिएट करो जीरो के साथ जिसका शेप होगा 2,3,3। ओके, एंड बाय डिफॉल्ट ये आपको जो आउटपुट देगा वो फ्लोट में होगा, इसलिए यू विल गेट डेसिमल। तो ऐसे आउटपुट आएगा। अभी मान लो आपको इंट में चाहिए, मुझे ये डॉट्स नहीं चाहिए, मुझे ये डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर यहाँ पे np डॉट जीरोस, इसके अंदर शेप बता दो एंड उसके बाद आप कौन सा डेटा टाइप आपको चाहिए वो भी बता दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो मुझे फ्लोट मिल रहा है बट मुझे इंट में चाहिए, तो आई विल मेंशन दिस। फिर आपको सेम चीज विदाउट डेसिमल आ जाएगा। okay? अभी जीरोस की जगह अगर आप वंस लिख दो तो आपको सेम चीज ऑल वन में आ जाएगा, तो पूरा स्ट्रक्चर में सेम शेप में आपको ऑल वन के साथ आपको आउटपुट मिल जाएगा। अगर इंट में चाहिए तो सेम कॉन्सेप्ट, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ जीरोस की जगह वंस। अंडरस्टूड? कैन आई सी यस ओवर चैट इफ इट इज क्लियर? ग्लास से ओके। Another one thing that is called A range. What is this A range? There is something called range. Okay, वो क्या होता है? Let's say if you say that, let's say for I in range 5. Okay, print I. So what it will print? Can you anyone with your laptop यस मैम। ये प्ले करके बताओ क्या आउटपुट आ रहा है? वेट मैम। सेम लिखना। ओके, प्रिंट के पहले इंडेंटेशन भूल मत जाना। ये हम भी प्ले करके देखते हैं। For I in range 5. Let's print I. What we are getting? 0 1 2 3 4। तो ये रेंज 5 का मतलब है आई वांट 5 एलिमेंट्स जिसमें ये 0 से शुरू होगा, स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 0। ठीक है, 0 के बाद 5 एलिमेंट्स 0 1 2 3 4। अगर मैं ये 7 कर दूं या मान लो 3 कर दूं तो क्या होगा? इट विल गिव मी 0 1 2। ओके, अभी देखो यू कैन मेंशन कि कौन सी रेंज में आपको आउटपुट चाहिए। तो मान लो मुझे 3 से 7 तक चाहिए। ठीक है, आई विल मेंशन 3 to 8। ठीक है, मुझे 3 से 7 तक मिल गया, मैंने 8 मेंशन किया तो इसलिए मुझे ये 7 तक मिला। यू रिमेंबर अबाउट स्लाइसिंग? तो सेम कॉन्सेप्ट है। आई वांट टू स्टार्ट द रेंज फ्रॉम 3 एंड आई वांट टू गो टिल 7। तो अगर 7 चाहिए तो आपको 8 मेंशन करना पड़ेगा, अगर 8 चाहिए तो फिर 9 मेंशन करना पड़ेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज। अभी ये सेम कॉन्सेप्ट आप एरेज में भी यूज कर सकते हो। ओके, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको
ए रेंज यूज करना पड़ता है, तो इट विल गिव यू एरे विद द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज। तो देखो अगर मैंने np डॉट ए रेंज लिखा तो ये मुझको एक एरे बना के देगा जिसमें नंबर्स होगा 0 1 2। तो दिस इज नॉट अरेंज, दिस इज ए रेंज। ओके, एरे रेंज। तो अगर मैंने 5 मेंशन कर दिया तो इट विल गिव मी 0 1 2 3 4। क्लियर? ओके, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, लाइन स्पेस। भी लाइन स्पेस से क्या होगा? लाइन स्पेस से इट विल गिव यू द एरे इन 2D फॉर्मेट, सॉरी 1D फॉर्मेट। ठीक है, सी क्या मैंने मेंशन किया? मैंने बोल दिया कि मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आई वांट द नंबर्स बिटवीन 10 to 20। और कितने सारे नंबर्स चाहिए? मुझे 11 नंबर्स चाहिए। ठीक है, जहाँ पे एंड पॉइंट फॉल्स, मीनिंग जो मेरा एंड पॉइंट है उसको इंक्लूड मत करना। तो मैंने जो 20 बोला है एज माई एंड रेंज, लास्ट का नंबर जो मैंने 20 बोला है उसको इस एरे में इंक्लूड मत करना। तो एंड पॉइंट फॉल्स मीनिंग कि 20 को इंक्लूड मत करो। तो अगर मैंने ये ट्रू कर दिया तो क्या होगा? ये जो एरे है उसमें 20 भी आ जाएगा। ठीक, तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो इंस्टेड ऑफ रेंज यू कैन यूज दिस एज वेल। यहाँ पे यू कैन मेंशन द नंबर्स कि कौन सी नंबर से कौन से नंबर के अंदर आपको डेटा चाहिए एंड हाउ मेनी डेटा चाहिए, कितने सारे एलिमेंट्स आपको रखना है। ओके, अभी एक काम करो, मुझे एक एरे रेंज की हेल्प से एक एरे बना के दो जिसमें एरे रेंज का नंबर होगा 10 to 50, स्टार्टिंग पॉइंट 10 एंड एंडिंग पॉइंट 50। इससे एक एरे बना के दो। आप चैट में भी डायरेक्ट लिख सकते हो, 1 लाइन कोड।
गुड जय। प्रज्वल, लाइन स्पेस से नहीं, आपको ए रेंज से क्रिएट करना था। जय, मैंने फॉर लूप के लिए नहीं बोला था। आई आस्क्ड यू टू क्रिएट वन एरे विथ ए रेंज। राहुल, आपने तो फॉर लूप के लिए क्रिएट किया है। ए रेंज से ट्राई करो, सेम थिंग, एरे बनाना है। सेम फॉर प्रशांत। अपने फॉर लूप क्रिएट कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड द होल थिंग, राइट? ए रेंज का जो कॉन्सेप्ट है। यस मैम। ओके, मैम फाइल शेयर कर देना। फाइल मैं कल शेयर करूंगी। आप पहले वो वाला आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना टास्क? यस मैम। कल मुझे दिखाना, ठीक है? ये ओके वाला। मैम। एक सेकंड मैम रुकना। ठीक है मैम, हो गया। ओके, चलो बाय। बाय बाय। ओके मैम। बाय मैम, थैंक यू। बाय।